हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का यानी 9वीं कक्षा के लिए जो है सामाजिक विज्ञान। ये टॉपिक कई माध्यमिक एग्जाम के व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम कुछ ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि हमारे चैप्टर के अंतर्गत होगा। ठीक है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि एग्जाम के समय मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, तो वो जो है वादा पूरा करने का समय है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। डिफाइन द टर्म और ड्रेनेज। देयर इज इंपॉर्टेंट and what are different types of drainage pattern. There is the most important question here according to the drainage chapter. Define the term of drainage and there are different types of drainage pattern here. The important question and important here answer. The term of drainage describe their river system on area. The describe here the river system of area. The streams within a drainage basin from a contain patterns and depending on their slope of land, underlining rock structure as well as their climatic condition of the area. There is an important point here, an important definition. The term of drainage describe their river system on area. The stream within a drainage is a basin from contain patterns depending on the slope of land, underlining rock structures as well as the climatical condition. There is important from a define of drainage, and there is a next here the different drainage pattern are. The first here drainage pattern here, dendritic pattern. Dendritic pattern is the most important here. The dendritic pattern is devolved where the river channel and flow there a slope of the terrain, and the stream with there is a tributaries resemblance and there are branches of the trees, and thus the name of dendrites. You know that there is dendritic pattern. The dendritic pattern is a devolved where is a river channel from to the slope of the terrain. That is the most important here. And the next point, the trellis pattern. Trellis pattern is important here. A river joined by their tributaries at the approximately is a right angle devolved at a trellis pattern. A trellis drainage pattern is a devolved where is a hard and soft rock exit to the parallel to the each other. There is important here the river joined by their tributaries at the approximately right angle develops a trellis pattern. And the next here rectangular pattern. Rectangular pattern is most important here according to the exam view. A rectangular drainage pattern are developed on the strongly jointed rock terrains. There is important the strongly joint of the rectangular shape on the rock. That is important. And the last point here, a radial pattern. The radial pattern is the most important here. The radial pattern is devolved bent stream flow in the different direction from a center peak or domes like a structure. There is important here pattern, the radial pattern. The radial pattern is devolved bent stream flow in different direction from a center peak and dome like a structure. यदि हम यहाँ पर बात करें अफवाह तंत्र शब्द की परिभाषा, देखिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही है अफवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम, और इसी के अंतर्गत क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से, और इसके अंतर्गत क्वेश्चन ना आएगा ये संभवता ही नहीं है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को जो है अच्छे से तैयार कर लो कि अफवाह तंत्र की क्या है। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर तो सिर्फ परिभाषा लिखा गया है कि अफवाह तंत्र को परिभाषित करें, लेकिन यहाँ पर यह भी हो सकता है कि अफवाह तंत्र से आप क्या समझते हो, अफवाह तंत्र क्या होता है, अफवाह तंत्र की परिभाषा दीजिए। तो जैसे मर्जी क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन में अफवाह तंत्र है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और दिलचस्प शब्द रहेगा। जल निकास पैटर्न के विभिन्न प्रकार के बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। तो ये चैप्टर के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है, और मेरा विश्वास है कोई भी एग्ज़ाम हो कभी भी हो, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। एक तो हमारा जो है अफवाह तंत्र के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे, और अफवाह तंत्र क्या होता है इसके विषय में हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो अगर हम अफवाह तंत्र की जो है बात करें, ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, तो कहते हैं
जल निकासी शब्द किसी क्षेत्र की नदी प्रणाली का वर्णन करता है। जल निकासी नाम से ही पता लग रहा है कि जल को जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में निकालने की प्रणाली का वर्णन करता है। यहाँ पर एक जल निकासी बेसिन के भीतर की धाराएं जो है भूमि की ढलान और अंतर्निहित चट्टान संरचना के साथ साथ क्षेत्र के जलवायु परिस्थिति के आधार पर कुछ पैटर्न बना लेती हैं। ठीक है, तो ये सिंपल डेफिनेशन था जो कि मैंने आपको इंग्लिश में समझाया था, लेकिन अगर आप अच्छे से इसको समझना चाहते हो तो यहाँ पर जो है दूसरा भी पॉइंट मैंने डाला है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अपवाद शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। बात उतना ही है कि जल निकासी शब्द का वहाँ पर प्रणाली की वर्णन करता है, और यहाँ पर अगर दूसरे शब्द में देखा जाए तो नदी तंत्र की व्याख्या करता है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वहाँ नदी प्रणाली की व्याख्या करता है, नदी तंत्र की व्याख्या करता है, दोनों का मतलब एक ही हुआ। लेकिन यहाँ पर शब्द के जो है जाल, कहते हैं शब्द की जो जाल होती है ना बहुत डिफरेंट होती है, बच्चे इसी शब्द के जालों में जो है फंस जाते हैं। अगर आगे हम देखें तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है, यानी जिस क्षेत्र के जल जो है प्रभावित होता है, उसे एक अपवाद द्रोणी कहते हैं। यानी कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है कि अपवाद द्रोणी किसे कहते हैं, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे एक अपवाद द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत, ठीक है, ऊंचा भूमि दो पड़ोसी अपवाद द्रोणियों के एक दूसरे से अलग करती है। यानी अपवाद जो द्रोणी होते हैं वो एक दूसरे क्षेत्रों को जो है अलग करते हैं, और इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक भी कहते हैं। यानी देखा जाए तो इसको जल विभाजक भी कहते हैं, अपवाद द्रोणी भी कहते हैं, जल निकासी भी कहते हैं, अपवाद तंत्र भी कहते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, और इसी के कारण आप लोग जो काफ़ी एग्जाम में कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि आप लोग अगर पढ़ के जाओगे अपवाद तंत्र, वहाँ पर आ जाएगा आपका जल निकासी, या हो सकता है अपवाद द्रोणी या विभाजक जल, तो आप कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इसका सबका मतलब एक ही है और आंसर भी इसका यही है, और आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से इसका आंसर दे सकते हो। चलिए, ये तो थोड़ा यहाँ पर परिभाषा। आगे जो हमारे समक्ष आएगा जल निकासी के पैटर्न, यानी जो है अपवाद तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जानना आपके लिए और भी दिलचस्प रहेगा। यहाँ पर जो हम आप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जल पैटर्न के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले हमारे समक्ष जो यहाँ पर आया है वो है डेंट्रिक पैटर्न। यानी डेंट्रिक पैटर्न भी जो होता है जल प्रवाह तंत्र के विषय में काफ़ी बताता है, और ये भी एक जो है एक तरीका है, पैटर्न है। डेंट्रिक पैटर्न वह विकसित होता है जहाँ नदी चैनल इसके इलाके की ढलान का जो है अनुसरण करती है। यानी जो है डेंट्रिक पैटर्न देखिए छोटे छोटे चैनल को जो है ढलान का अनुसरण करती है। यानी ऊपर से अगर पानी आप गिरते हो तो वो जो है कई छोटे छोटे क्षेत्रों में विभक्त हो जाता है। डेंट्रिक आपने देखा होगा, साइंस में भी डेंट्रिक सेल्स दिखते हैं जो नर्वस सिस्टम में होते हैं, तो ये छोटे छोटे क्षेत्रों में फैले होते, छोटे छोटे होते हैं। यानी आपने अगर नर्वस सिस्टम का अगर डायग्राम का अध्ययन किया है तो डेंट्राइट्स जो होती है वो सेम ऐसे ही जो है नदियों का प्रभाव भी जो है विभक्त हो जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए डेंट्रिक पैटर्न का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। यानी सारे नदियाँ जो है चैनल इसके ढलान का अनुसरण करती है डेंट्रिक पैटर्न की, और इसकी जो है सहायक नदियों के साथ धारा एक पेड़ की शाखाओं से मिलती जुलती है, इसलिए इसका नाम डेंट्रिक पड़ा है। यानी अगर पेड़ देखिए, अगर मान लीजिए कि सूखा पेड़ है तो कैसे जो है मोटा जड़ होगा, उसके बाद टहनियाँ होगी, सेम वही डेंट्रिक की तरह ही दिखेगी जैसे नर्वस सिस्टम में आपको दिखता है। तो ये इसी तरह का जो है पैटर्न का अनुसरण करता है, इसलिए इसका नाम जो है डेंट्रिक पैटर्न पड़ गया है। उसके बाद टेलिस पैटर्न, देखिए टेलिस पैटर्न भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है। कहते हैं एक नदी अपनी सहायक नदी से लगभग समकोण पर मुड़ती है। यानी एक नदी अपनी सहायक नदी, अब देखिए सहायक नदी की बात किया गया है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सहायक नदी का अर्थ क्या है। देखिए एक नदी है और नदी में आकर कोई और नदियाँ मिल रही है और उसकी जो है गति को तेज कर रही है, तो इसका मतलब है सहायक नदी। कोई व्यक्ति अगर काम करता है, कोई सहायता करता है, उसको सहायक ही कहते हैं ना। तो ऐसे ही नदियों में भी यही बात आती है कि एक नदी अपनी सहायक नदियों के लगभग समकोण पर मुड़ती है और एक टेलिस पैटर्न विकसित करती है। टेलिस जो है टेलिस पैटर्न विकसित होता है जहाँ कठोर और नरम चट्टानें एक दूसरे के समांतर मौजूद होती है। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ गया कि टेलिस जो है टेनिस पैटर्न विकसित कहाँ होता है, जहाँ पर कठोर और नरम चट्टानें एक दूसरे के समांतर मौजूद होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ गया है कि कठोर और नरम चट्टानों में जो है टेनिस पैटर्न जो है अपनी बखूबी भूमिका निभाता है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष आया है आयताकार प्रतिरूप। देखिए इसके कारण क्या बनता है, आयताकार प्रतिरूप बनती है। ठीक है, तो कहते हैं एक आयताकार अववाह प्रतिरूप प्रबल रूप से जुड़े चट्टान भूभाग पर विकसित होती है। और आयताकार प्रतिरूप कहाँ विकसित होती है, एक जो है प्रबल रूप से जुड़ी चट्टानों के नीचे, यानी जहाँ पर जो चट्टान होती है ना, बड़े बड़े शिलाएँ होती है, वहाँ पर जो है ये भूभाग पर ये विकसित हो जाती है। यानी अगर आप पानी की प्रवाह देखोगे तो वहाँ पर जो है उस पैटर्न को काटते हुए, बड़े बड़े चट्टानों को काटते हुए जो जल है, जो नदी है, अपनी रास्ता बना लेती है। तो ये आयताकार प्रतिरूप तैयार करती है, जिसके कारण इसका नाम जो है आयताकार प्रतिरूप पड़ गया। अगर अंतिम बात की पॉइंट की बात करें तो साफ कर देता है कि रेडियल पैटर्न। अब रेडियल पैटर्न भी एक तरह का पैटर्न है। रेडियल पैटर्न तब विकसित होता है जब धाराएं केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग दिशाओं में बहती है। अब ये भी पॉइंट बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रेडियल पैटर्न तब विकसित होती है, कब विकसित होती है, जब धाराएं यानी पानी की जो धाराएं आ रही होती है, केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना अलग दिशाओं में बहती है।